পিঙ্ক রোজ এন্টারটেনমেন্টের প্রযোজনায় মিস্টার মিস মিসেস ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল 2022 এর অডিশন এবং ক্যালেন্ডার লঞ্চ হলো আজ কলকাতার ন্যান্সি স্টুডিওতে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মিস জোজো। অডিশনও নেন প্রচুর নতুন মুখের। আর কি কি হলো সেই অনুষ্ঠানে দেখাবো। আজকে আপনি এরকম ক্যালেন্ডার লঞ্চে এসেছেন, কিরকম লাগছে? একদম অন্যরকম পরিবেশ, আর আপনার যে গানের জগৎ তার থেকে একদমই ডিফারেন্ট। কিরকম লাগছে? আমি বেসিক্যালি এখন গানের মানুষ নই, বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। আমার মাল্টিটাস্কিং এর জন্য আমি অনেকটা মিক্সড কাছে আমি সো ভালো লাগছে। এবং এই একটা মন্দির জীবনের মধ্যে থেকে হঠাৎ করে সকালবেলা সুন্দর সুন্দর সাজগোজ সুন্দরভাবে নিজেদেরকে প্রেজেন্ট করে একটা পরিবেশে আসতে পেরে বেশ ভালো লাগছে। থ্যাঙ্কস টু নীনা। অ্যান্ড আরও বেশি ভালো লাগছে সেটা হলো যে এটা এমন একটা ক্যালেন্ডার লঞ্চ যেখানে বাচ্চাদের ছবি আছে, বড়দের আছে এবং সব বয়সী বড়দের আছে। সো কাজেই আমার মনে হয় যে নিজে যে কন্টেস্টটা করে সেটাতে প্রত্যেক বয়সের মানুষজন পার্টিসিপেট করতে পারে। কারণ নাহলে বেশিরভাগ এরকম ধরনের ফ্যাশন কন্টেস্ট বা কিছুতে তো একটা এজ লিমিট থাকে, এটাতে সেটা নেই। সেটার জন্য বেশ ভালো লাগছে এবং আমার মনে হয় এটা প্রত্যেক বয়সের মানুষকে একটা ইন্সপায়ার করে। আচ্ছা, এই যে গ্রুমিং যে ব্যাপারটা, সেটা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট এখনকার দিনে। তো এইটাকে তুমি কতটা মনে করো যে এটা এখনকার দিনে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ? দেখ, বেসিক্যালি তো আমার মনে হয় একজন মানুষ যদি চেষ্টা করে তাহলে নিজের থেকে ভালো গ্রুমার আর তার কেউ হয় না। যদিও এখন অনেক সুবিধে আছে, অনেক এরকম ক্লাসেস আছে, অনেক এরকম ইনস্টিটিউট হয়েছে যেখানে তুমি গিয়ে নিজেকে গ্রুম করতে পারো। কিন্তু আমার মনে হয় যে নিজের থেকে বড় শিক্ষক জীবনের আর কিছু হয় না। নিজের এক্সপিরিয়েন্স, নিজের ইচ্ছে থাকলেই সেদিকে এগোনো যায়। তবে হ্যাঁ, যুগের সঙ্গে চলতে গেলে এখন যেহেতু যুগ আমাদের এই সুযোগ সুবিধাগুলো দিচ্ছে, তাহলে কেন? একদমই। আর এই যে প্ল্যাটফর্মটা, এটার সাথে কিভাবে অ্যাসোসিয়েট করে? আর যদি এটার সঙ্গে তো হেনা আমাকে অ্যাসোসিয়েট করেছে, মানে হেনা আমাকে আজকে এখানে ইনভাইট করেছে, নাহলে আমি জানতে পারতাম না এরকম একটা কিছু হচ্ছে। সো ভালো লাগছে। অ্যান্ড আই উইশ অল দ্য পার্টিসিপেন্টস অ্যান্ড contestant all the love for their future. একদম। আর আমাদের যে পর্দার মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের জন্য তুমি কি বলবে? 24 আওয়ার্সের সমস্ত দর্শকদের জন্য আমার অনেক অনেক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। সবাই খুব ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং লাইফ এনজয়। एक्चुअली सबसे पहले मैं अपने शो के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग देना चाहती हूँ कि जैसे मैं एक मिसेस एशिया विनर हूँ, हिना कौसर। और मेरा एक्चुअली क्या रहा है कि एक बाई हार्टली मैं हमेशा से एक सोशल वर्क करना चाहती हूँ और मैं करती आई हूँ। तो जब मैं मिसेस एशिया विनर बनी तो मुझे अपना वो जर्नी याद है कि दैट वॉज हाउ मीन्स टफ दैट सिचुएशन वॉज। मीन्स नो बॉडी वॉज देयर टू सपोर्ट मी। स्टिल मैंने कितना फेस करके इस क्राउन तक पहुँची हूँ। और इस क्राउन के लिए इवन मेरी मदर कभी नहीं चाहती थी कि कभी मैं इसके लिए पार्टिसिपेट करूँ। इट वॉज लाइक उनकी नज़र में इट्स लाइक अ सीन, जो कहते हैं ना पाप है, लाइक शी फील्स। बहुत भी सोसाइटी अभी भी फैशन इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ये बताऊँ, जहाँ पूरी दुनिया मुझे अप्रिशिएट कर रही थी कि मैं आज एक यूरोप से आई हूँ, इतना दूर जर्नी तय करके लोग ब्लेसिंग्स दे रहे थे। मेरी माँ ने मेरे से 1 महीने तक बात नहीं करी, सीधे मुँह एक साथ बात नहीं करी कि फैशन इंडस्ट्रीज में क्यों गए, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मीन्स अभी भी सोसाइटी ये फैशन इंडस्ट्रीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। बहुत ही कम परसेंट लोग हैं जो जिसमें फेवर करते हैं। तो मैं अपनी जर्नी को याद करी कि कितना मुश्किल रहा था। उसके बाद मैंने ये सोचा कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो हम जैसी काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं और लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं जो यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, लोग उनको फेवर नहीं कर पा रहे। तो मैं कुछ ऐसा रास्ता निकाले जो इनके लिए बहुत ईजी रास्ता हो। तो मैंने इसके लिए बहुत ही मीन्स ईजी ये एक ट्रैक लिया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की, जिसे बहुत ही हार्ड फास्ट मैं ऑडिशंस नहीं रखे। मैं कोशिश करूँ हर लेवल के लोग छोटी छोटी शहरों से हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आए और अपने आप को ग्लैमर फील्ड में एक पहचान बनाए। तो बाय द ब्लेसिंग्स और आप लोग की दुआ से हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि सीज़न 3 कर रहे हैं। और इसमें आप जब भी देखो सीज़न 1, 2, 3, जिसमें आपको हमेशा से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ नज़र आएंगे। तो इसमें राहुल रॉय जी हमारे साथ हमेशा रहे हैं, उसके बाद शब्बीर अली रहे हैं, वरुण सूरी रहे हैं, वरुण जोशी रहे हैं। तो टीवी आर्टिस्ट से लेकर हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ तक रहे हैं। और ये मैं हमेशा कोशिश करी हूँ कि अच्छा प्लेटफॉर्म और
पहुंचाऊं आप तक। और आज ये ब्लेसिंग्स रहा कि एक हमारी इंस्पिरेशन थी जो जिनसे मैंने 2019 में एक शो में बहुत दूर से मिली थी। उनका नाम था मिस जोजो मुखर्जी जी। शायद उस टाइम ये भीड़ में मुझे नहीं भी पहचानी, उस टाइम मैंने सेल्फी लिया था, आई रिमेंबर। बट इनकी आवाज़ से मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि मुझे बहुत अरमान था कि मेरे शो में ये ज़रूर आए। और बाय द गॉड ग्रेस शी इज़ इन दिस ऑडिशन। तो ये हमारा आज जो है कैलेंडर लॉन्चिंग है, जो हमारे सीज़न 2 के कंटेस्टेंट हैं उनका, और साथ साथ काफ़ी सारे अदर मॉडल्स भी हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं, वो कैलेंडर मॉडल बने हैं। और उसके साथ हम लोग आज ऑडिशन ले रहे हैं सीज़न 3 के लिए। অ্যাকচুয়ালি মার্কেটের আরো অনেক এরকম প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, কিন্তু Yes. তোমার প্ল্যাটফর্মের ইউএসপিটা কি? Yes, there are lots of platform, very true, मीन्स डेली ही प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, बट वो कहाँ पहुँच जाते हैं ये नहीं पता चलता है। बट हमारे जो मॉडल्स हैं उनको एक इतना हम उसे ये करते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। आफ्टर ग्रूमिंग जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक नॉर्मल वीमेन, नॉर्मल किड, नॉर्मल मैन, नॉर्मल बंदा जो ट्रांसफॉर्म होकर प्रॉपर प्रोफेशनल मॉडल बन जाता है। तो आप अगर सीजन 1 की मॉडल से भी मिलते हो, उस टाइम शी वॉज नॉट इवन एबल टू टॉक विद एनी वन, बट नाउ इफ शी विल वॉक ऑन द रैंप, शी विल मेक द फन ऑन द रैंप। मीन्स हम लोग वो प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ कि एक नॉर्मल इंसान अपने आप प्रोफेशनल मॉडल बनाता है, और उसके बाद भी हम वो प्लेटफॉर्म देते हैं लाइक वहाँ से निकलने के बाद उनको लाइक एड, फोटो शूट्स या वेब सीरीज, शॉर्ट मूवीज़ या म्यूजिक एल्बम, जहाँ भी हो सब जगह एक प्लेटफॉर्म देते हैं। इवन आप लोग की मेहरबानी, रहमो करम मीडिया वाले का साथ रहता है कि हम लोग और भी उस लेवल पे पहुंचते हैं जहां शायद ही कोई पहुंच पाए जहां तक हम पहुंच पाए। सीज़न 1 में ही बॉलीवुड तक ये हमारा सीज़न इतना गया था कि सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ आने के लिए मैक्सिमम लोग अप्रोच कर रहे थे। तो हमारा प्लेटफॉर्म कैसे अलग है, हमारे कितने पार्टिसिपेंट फ्रॉम होल्डर्स यहाँ पे हैं जो सीज़न 1 की हैं, सीज़न 2 की है, आप उनसे सेपरेटली भी पूछोगे तो वो खुद बताएंगे व्हाई दे आर विद अस। वो हमारा पैजेंट दूसरे से कैसे अलग है, दे विल टेल अबाउट अस। हमारे जो कंटेस्टेंट जाते हैं तो हमारे लास्ट ईयर के इधर एक विनर होंगे मिस्टर टीन के, उनके साथ ही कितने फ्रेंड्स आए ऑडिशन के लिए। मैं किसी को अप्रोच नहीं की कि मेरे पैजेंट में आओ, बट उन्होंने क्या खासियत देखा कि उनके साथ खुद लोग आए। तो ऐसे हमारे मतलब बाय द गॉड ग्रेस कि हम उस लोगों को वो चीज़ पहुंचा पा रहे जो हमारा एक शौक था, सपना था। तो बाकी आप भी देख रहे हो हमारा शो कैसे डिफरेंट है। আজকে ক্যালেন্ডার লঞ্চ তো কিরকম লাগছে তোমার নিজের ক্যালেন্ডার লঞ্চ? देखिए कैलेंडर लॉन्च का ये हमारा सीज़न 2 है और ऑडिशन का सीज़न 3 है। तो डेफिनेटली हमारे मॉडल्स इतना सुबह हम सबसे इतना एसोसिएट हो कि वी आर एक्साइटेड। और सबसे बड़ी बात है इंडिया के हर कोने से मॉडल्स हैं। तो कितने लोग पहुंच पाए हैं, कितने लोग नहीं पहुंच पाए, ऑब्वियसली चंडीगढ़, अमृतसर, बरनाला, इन लोग वाले मॉडल्स तो यहाँ आ नहीं पाएंगे। और कोविड गाइडलाइन से हम लोग बहुत फॉलो भी कर रहे हैं, सारे कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं किए हैं, तो सारे मॉडल्स नहीं आए हैं, बट दे विल गेट बाय द कुरियर, उनको कैलेंडर कुरियर से जाएगा। ঠিক আছে, আর আপনি কিছু আসতে চাই? आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और 24 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जो कि आप ही लोगों के जरिया जो हमें लोगों के बीच पहुंचाते हो। अदरवाइज हम जो भी शो कर रहे हैं, आप अगर नहीं होंगे तो हम लोग अधूरे हैं। यू आर द सोर्स, कीप ब्लेसिंग्स। এটা প্রথমবার যখন আমি গ্রাউন্ড পেয়েছিলাম তখন অবভিয়াসলি মনে হয়েছিল যে স্কুলের বন্ধুরা তাহলে ঠিকই বলতো। আর আমি সবার প্রথম তো এই আমার বাবা নেই, তো আমার বাবার মতো আমার চোখ হয়েছে। তো বেসিক্যালি সেটা আমি বাবাকেই বলবো, অ্যাওয়ার্ড গোজ টু মাই ফাদার। তো ডেফিনেটলি বাবার জন্যই আজকে মানে হয়তো এটা গড গিফটেড অ্যান্ড বাবার জন্য। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে আজকে এই প্ল্যাটফর্মে আসা তার ইন্সপাইরেশন পুরোটাই হচ্ছে আমি ইন্সপায়ার্ড হয়েছি আমার দাদার জন্য। আমার দাদাই হচ্ছে আমার লাইফের গড বলতে পারো। তো মোস্ট ফেভারিট পার্সন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন ইন মাই লাইফ মা তো রয়েছে। তো আমি একটু ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড, তো ভীষণই ভালো লেগেছিল। প্রথমবার যখন গেছিলাম তখন এটাই মনে হয়েছিল যে সৌন্দর্য তো ম্যাটার করে, প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু থাকে, কারোর চোখ, কারোর হাসি, তো কারোর গ্ল্যামার, তো সব কিছুই। তো সবার আগে আমি বলবো যে মনটা, কারণ ওইটা কোনোদিনও পুরনো হয় না, ওটা মানে ছোটও হয়ে যায় না, কারণ আমরা বয়স হওয়ার সাথে সাথে হয়তো চোখটাও খানিকটা ছোট
ছোট হয়ে যাবে, স্কিনটাও কুচকে যাবে, কিন্তু মানসিকতাটা, মেন্টালিটিটা তুমি যেরকম আজকে রেখে দিচ্ছ, হ্যাঁ একদম সেটা একদম আমার মনে হয় যে যখন আমি 60 ইয়ার্স হবো, 50 ইয়ার্স, 40 ইয়ার্স, তখন মেবি সেরকমই রাখাটা উচিত। আর নিজেকে ভালোবাসা, এটা আমি সবসময় সব ইন্টারভিউতে সবাইকে বলি যে যদি কেউ নিজেকে ভালোবাসতে পারে তো আমার মনে হয় সে লাইফে সব কিছু অ্যাচিভ করতে পারে। কারণ নিজেকে ভালোবাসতে না পারলে অন্যজনকে ভালোবাসা যায় না। নিজের বাবা মা নিজেকে রেসপেক্ট করতে না পারলে বাইরের কাউকে, মানে বয়স্কদের বা অন্য প্যারেন্টসদের বা যে কেউ রাস্তাঘাটে সবাইকে কাউকে রেসপেক্ট দেওয়া যায় না। তো ডেফিনেটলি আগে ঘর থেকে রেসপেক্টটা চালু করতে হয়, নিজের থেকে রেসপেক্টটা চালু করতে হয়। আচ্ছা, এই যে তুমি মিস বিউটিফুল আইকনিক আইজের একটা অ্যাওয়ার্ড পেলে, তোমার কি মনে হয় যে সৌন্দর্যের চোখ একটা সত্যি মানে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অংশ? এটা তো আমি বলবো হ্যাঁ ভীষণ, কারণ হচ্ছে আই কন্ট্যাক্টস করে অনেক কিছু বলে দেওয়া যায়, ঠিক আছে? তো অবভিয়াসলি চোখ তো ম্যাটার করে। তবে এখানে আরেকটা কথা বলবো, যারা ব্লাইন্ড তো তারা যদি দেখতে পায় না, তো সেই কারণে আমি ফার্স্ট অফ অল তোমাকে বললাম মনটা, স্পিচ, মুখের নিষ্ঠত্বটা, তো ব্যবহারটা, এইটা যদি মিষ্টি রাখা যায় তো চোখ বলো, স্কিন বলো, ম্যাটার করে না। আজকে এই যে তোমার ট্যালেন্টেড লঞ্চের এসেছে, ভীষণ ভালো লাগছে। মানে এটা আমি বলবো যে আজকালকার নিউ জেনারেশনকে একটা নতুন করে রাস্তা দেওয়া, কারণ আমি কোনো কিছু একটা পেলে তবেই তো সেটার প্রতি আমার একটা আকর্ষণ জন্মাবে। তো এই জিনিসগুলো আগে প্ল্যাটফর্মগুলো ছিল না, এখন প্ল্যাটফর্মগুলো এত মাত্রায় বেড়ে গেছে, তো ছেলে মেয়েদের মধ্যে জেনারেশনের মধ্যে না নতুন করে এনকারেজ করছে, আর এখন যে কেউ যা কিছু করতে পারে। তো তার জন্য আমি বলবো যে সবার ভেতরকার ট্যালেন্টগুলোকে বার করাটা উচিত, একটা চান্স তো দেওয়া, মাল্টিটাস্কার হওয়াটা বেটার। একদম এই প্ল্যাটফর্মটা টাইমে একদম তোমাকে দুটো সম্মান দিয়েছে। ডেফিনেটলি দিয়েছে, এবং আমি বলবো যে এরকম যারা, আমি অ্যাজ এ হাউস ওয়াইফ, তো আমি যখন আজকে এই জায়গায় এসে বিলং করতে পারছি, আমার একটা মেয়েও আছে, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলবো প্রত্যেকেরই স্বপ্ন দেখা উচিত, এবং দেখলে পরে কিছুটা হলে স্বপ্নটা সার্থক হয়। কারণ নিজের উপর ভরসাটা রাখলে আর নিজেকে ভালোবাসলে ডেফিনেটলি সেটা হবে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই, যে যেটা আগে বললাম যে সবাই নিজের উপর ভরসা রাখবে, বিশ্বাস রাখো। সিচুয়েশনটা একটু প্যান্ডামিক চলছে আজকে 2 বছর ধরে করোনার জন্য, ডিউ টু করোনা, তার জন্য নিজেকে মাল্টিটাস্কার করো, যাতে একটা ওয়ে বন্ধ হলে আর একটা ওয়ে খুলে যায়, আর তার জন্য সব কিছুতে ঝাঁপ দেওয়াটা উচিত, ট্রাই দেওয়াটা উচিত। দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো, যে প্যান্ডামিক সিচুয়েশন চলছে, সবাই বাড়িতে থাকো, সাবধানে থাকো, বাট নিজের ভেতরটা ট্যালেন্টগুলোকে বার করো, মাল্টিটাস্কার করো, কারণ যা সিচুয়েশন আস্তে আস্তে ক্রিয়েট হচ্ছে, একটা ওয়ে বন্ধ হলে যেন আর একটা ওয়ে খুলে যায় লাইফে, আর তার জন্য নিজের ট্যালেন্ট, নিজের যোগ্যতাকে বিভিন্ন রকম জায়গায় নিজেকে ভাগ করতে থাকবে, তাহলে দেখবে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনটা অতটা আমাদের উপর এফেক্ট করতে পারবে না। First, I would like to tell you that what's the beauty? Beauty doesn't mean external facial beauty. Beauty doesn't mean fair skin. Beauty doesn't mean tall, fair. It's not definition of beauty. All persons are born as a beautiful. Because I believe कि God की creatures कोई भी बदसूरत या खराब नहीं होते, सभी beautiful होते हैं। But how you can show, how you can represent yourself, आप अपने आप को कैसे represent करते हो, that's a beauty. If you or see any person who is crossing on the road, he might be not beautiful, आप बोलो वो अच्छा नहीं है, but if you start to talk, then you feel that how beautiful he or she is. तो इट्स मीन्स ऑल ओवर आप मिलाकर ही फील कर पाओगे कि इंसान कितना ब्यूटीफुल है। एटीट्यूड विद ग्रैटिट्यूड, एक आप किसी से बात कर रहे हो, अगर के रूड होकर बात करते हो, फेयर स्किन है बट इट्स नॉट ब्यूटीफुल। आप अगर बात करते हो तो रिक्शा कूलर से भी प्यार से बात करें, बिकॉज ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। वो जो पैदा हुआ उसे भी भगवान ने पैदा किया, हमें भी भगवान ने पैदा किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फेयर स्किन है तो हम उसको रूड होकर जवाब दें। इट्स नॉट डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स सॉफ्ट स्पोकन, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंस, व्हाट टैलेंट यू हैव। आपको जो भी टैलेंट आपके अंदर है, शायद आप बहुत अच्छा बोलना जानते होगे, बहुत अच्छे स्पीकर होगे, शायद मैं नहीं होगी वो अच्छी स्पीकर,
हर इंसान में एक एक क्वालिटी होता है और वही होता है डेफिनेशन ब्यूटी का। बहुत अच्छा बोलना हो सकता है, बहुत अच्छा चलना होता है, बहुत अच्छा बिहेवियर हो सकता है, बहुत अच्छा टैलेंट आपका हो सकता है, बहुत अच्छा पेंटिंग करते होंगे, हो सकता है बहुत अच्छा राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं। तो ये कंपोजिशन सबका मिलाकर ही ब्यूटीफुल इंसान होता है। एग्जैक्टली ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म क्या लोगों को ब्यूटीफुल बनाने का प्लेटफॉर्म है, तो ये प्रोसेस क्या है? यू कांट से दैट हम किसी को ब्यूटीफुल बना रहे हैं कि जो भी हमारे पास आ रहा है ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, बट हम उसके अंदर वो चीज एहसास दिलाते हैं कि आप ब्यूटीफुल हो। यू मस्ट रियलाइज दैट यू आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल। वी आर हियर टू पॉलिश देम, इनहैंस देयर ब्यूटी व्हाट दे हैव ऑलरेडी। हम ब्यूटीफुल नहीं बना सकते, जस्ट उन्हें इन्हांस कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, उन्हें उस चीज़ को ग्रूम अप कर सकते हैं कि आप में जो टैलेंट है आप उसको कैसे निखार के लोगों के बीच ला सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म में कॉन्सेप्ट है हमारा जैसे ये कॉन्सेप्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा बेसिकली कहें तो इट्स नॉट एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन, जस्ट आई एम बीइंग अ सोशल वर्कर, आई वांट टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू अपकमिंग यंगस्टर्स, किड्स, मिसेस, मिस, टीन, सबको वो प्लेटफॉर्म देना जो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिनको पता नहीं होता है कि हम ग्लैमर फील्ड में अपने आप को कैसे लाएं। तो उसके लिए हम ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हर एज के लोगों के लिए, एक छोटे बच्चे से लेकर टीन के लिए है, मिस के लिए, और शादी के बाद तक जिनको मौका नहीं मिला उनको भी हम मौका देते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपने आप का एक नाम बना सकते हैं ग्लैमर फील्ड में, वो अपने आप को एज ए मॉडल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। আর অ্যাকচুয়ালি লাইক ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে একটা খুব রং কনসেপ্ট মানুষের মধ্যে আছে, সেই কনসেপ্টটা যে কতটা ভুল সেটা জানার জন্য কি বলবেন? ये जो आप क्वेश्चन पूछ रही है ना, इट्स वेरी मच कॉमन और सभी मेरे से पूछते हैं ये बात, और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो आप गलत इस फील्ड को समझते हो, मैं बताऊँ कि फील्ड गलत सही आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है। कोई अगर गलत नज़रिए से देखेंगे तो कौन सा फील्ड आपको अच्छा दिखेगा, क्योंकि हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं। तो अच्छे लोग जो होते हैं हर फील्ड को अच्छा बनाते हैं, बुरे लोग होते हैं कोई भी फील्ड को बुरा कर सकते हैं। तो हाँ, बहुत सारे लोग हैं कि शॉर्टकट अपना कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बताओ सिर्फ फैशन शो में ऐसा नहीं होता है, ये शॉर्टकट वाला हर जगह होता है, चाहे आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में चले जाओ, बिजनेस प्रोफेशन या किसी भी जगह चले जाओ। शॉर्टकट वाला रास्ते के लिए लोग ना गलत रास्ते में जाते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बदनाम होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो सब लोगों ने माइंडसेट कर रखा है, इंडस्ट्री गलत होती, फैशन शोज गलत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही गलत आपका अपना डिसीजन है, आपको कौन से रास्ते अपनाने हैं। बीइंग ऑर्गेनाइजर बहुत ज़्यादा बातें नहीं मैं बोलूँगी, बट हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं, हमारे साथ हमारे पैजेंट से बहुत तरह के एसोसिएट होते हैं, बट हमारे एक रूल रेगुलेशंस अपने माइंड सेट से बने हुए हैं कि उस हिसाब से मैं खुद भी एक सही रास्ता इख्तियार करके अपने क्लीन लेकर मैं अपने पैजेंट को चलती हूँ, और मैं अपने जो हमारे कंटेस्टेंट भी होते हैं उनको भी मैं वही मार्गदर्शन देती हूँ कि आप भी आके सही रास्ते इसको बनाकर चलें, और ऑब्वियसली जो भी चीज़ में आप ईमानदारी से करोगे उसके ऊपर गॉड का हाथ होता है, तो यू विल बी डेफिनेटली सक्सेस वेयर यू आर, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। Try to get what you want, otherwise one day you will be forced to have what you get। कहते हैं, मुझे वो याद आ रहा है एक शेर, गिरते हैं शशवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शशवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। यानी हारता वो है जो मेहनत करता है, जो चलता है वो गिरता है, जो चलना ही नहीं सीखा वो क्या गिरेगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तुम्हारा उम्र एज कितना है? 6 years. ओके, तुम अपने आप को ब्यूटीफुल मानते हो? Yes. यस, ओके। क्यों मानते हो अपने आप को ब्यूटीफुल? I am
beautiful. You are beautiful. That's when you're beautiful. Okay, fantastic. तो तुम्हारी मम्मी आज ये कैलेंडर लॉन्च कर रहा है। यहाँ पर इतना जो आंटी आया है, इतना सारी कुछ इतना सारा तुम्हारी उम्र के बच्चे भी आए हैं, तुम्हारे दीदी भी आए हैं। कैसा लग रहा है? सारे एम्बियंस में सब डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कैसे लग रहा है? More than chat. Okay, thank you so much.